Students of class 11th. Now today I will start a new chapter of microeconomics, chapter 5, production function. Production function. It is very important chapter. इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन अकॉर्डिंग टू टाइम. इट विल डिवाइडेड इनटू टू runs. One is short run and long run. Many factors which were used in the production process, fixed and variable factors. So let us start with the concept of production. Concept. Whatever we used in the production process is called input or a factor of production, and whatever is obtained in the process of an output, that is called output. It means cotton is the input and the cotton clothes are the outputs. Okay? Input is the sugar and the output is a tea. Sugar canes are the input we use and sugar, refined sugar, is the output. Production function. What is production function? In the equationary we write Q is the function of x1, x2 and dot dot dot. It means xn tak, xn. Here Q is the physical quantity reduced by per time period, and x1, x2, xn are the physical quantities of various inputs, and F is the function. According to the Watson, production function is the relationship between the firm's production and the material factor of the production. The functional relationship between change in output due to change in input is studied in two times period, that is short run and another is long run. Short run refers to a period in which output can be changed only by changing the quantity variables factors. During the short run, the quantity of a fixed input. Fixed inputs means like plant, machinery, buildings, etc. cannot be changed. It remains the same. It means production can be raised only by increasing the quantity of variable factors, but it will be possible up to the extent of the capacity of fixed factors. For example, if a producer wants to increase output in the short run, then he can do so only by using more of raw materials and labor with the existing factory building, plant and equipments. He cannot immediately expand factory buildings, install additional plant and equipment in short run. Now, here long run. Long run refers to a period in which output can be changed by changing all factors of production. In the long run, all factors means all inputs are variable. Firms can change in the scale of production, shift to the new technology of production, purchase new machineries, etc. Therefore, the distinction between fixed and variable factors disappears in the long run. In the long run, both the factors can be changed. It means fixed and variables both can be changed. In a short run, only the variable factors can change.
फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। क्योंकि जब हमारे पास टाइम कम होता है तो हम क्या कर पाते हैं, जो हम ओनली द रॉ मटेरियल्स को हम चेंज कर सकते हैं कि हम उसकी क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी अगर हमने शॉप एक ली हुई है तो उसको चेंज हम नहीं कर सकते। यस, हियर इज फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स refers to those factors of production the quantity of which cannot be changed during the short run. It means fixed factors जो होते हैं वो हमारे short run में बिल्कुल भी change नहीं होते हैं। These are used in fixed quantity in the short run. These factors can be changed only in the long run. यानी कि ये शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, ये केवल चेंज किस में होंगे, हमारे लॉन्ग रन में चेंज होंगे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। These factors are not directly related to the level of output. In fact, fixed factors have to be employed even before the output actually start. Examples क्या हुए फिक्स्ड फैक्टर्स के, जैसे लैंड हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग्स हो गई, एंड द टॉप मैनेजमेंट। इन द ऑफिसेज देयर इज अ टॉप मैनेजमेंट एंड इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर्स। नेक्स्ट इज variable factors. Variable factors means, variable factors are those factors of production the quantity of which can be changed during the short period. The quantity of variable input varies according to the level of output. It means जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होता है वैसे वैसे आपके वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज होते हैं। बट इन द केस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर बोथ आर रिमेन द सेम, मतलब आउटपुट तो चेंज होगा बट फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं वो रिमेन्स द सेम। लेकिन इसमें वेरिएबल फैक्टर्स में आपके दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो आपके चेंज होंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन। देयर आर टोटल प्रोडक्शन, marginal production and average production. First of all, we will discuss about the total production. What is total production? Total production refers to the total quantity of a good produced by a firm with the given quantity of a variable inputs. Variable inputs means total product क्या हुआ? We can say with the help of example, there is a units. Units means I will show you with the help of a schedule. Here the units, and second box there is a total product, it is a average product, and last one is marginal product. Okay, units 1, 2, 3, 4. The total production increases. Total production means here we can write 12, 14, 15 and 14. Average product is equals to TP upon Q. एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी कर देंगे। यूनिट्स आर द क्वांटिटी। ओके, देन 12, 7, 5, इसको आप 12 कर लीजिए, 3। ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करने में, नहीं तो डेसिमल में आता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे मार्जिनल। मार्जिनल के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट यूनिट टीपी की वही आपकी रहेगी 12, इससे इसको माइनस करेंगे 2, इससे इसको माइनस करेंगे 1, -3। ओके, then the definition of average product. What is average product? Average product is defined as the output per unit of variable input. We calculate it by the example, by the formula of TP upon Q. L is the level of L इसकी जगह Q की जगह हम कहीं पे L भी लिख देते हैं। L is the level of employment of the variable input. TP denotes the total product. After average product, marginal product, it is also called a marginal physical product. Marginal
physical product. Okay, the definition of it is an input is defined as the change in output by the employment of an additional unit of labor. इसीलिए MP का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं MPL इज इक्वल्स टू TPL माइनस TPL माइनस 1. आपको अपना मार्जिनल यूटिलिटी वाला फॉर्मूला याद आ रहा होगा, वहाँ पे हम MP की जगह MU लिख रहे थे, इज इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1. एक अल्टरनेटिव फार्मूला और भी है कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी हो तो इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, चेंज इन TP अपॉन चेंज इन क्वांटिटी या लेबर्स. क्वांटिटी मीन्स लेबर्स, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है, आपको चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन लेबर. आई विल एक्सप्लेन इट हाउ. इसके लिए मैं एक क्वेश्चन है, जैसे सपोज 5 लेबर्स प्रोड्यूस्ड 90 units. 5 laborers produced 90 units of a commodity and 8 laborers produced 120 units. फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, MP इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी. टोटल प्रोडक्ट में आपका कितना चेंजेस है, चेंज है, इट मीन्स इसमें कितना चेंजेस है, तो इट मीन्स 120 अपॉन 90 अपॉन चेंज इन लेबर, चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन लेबर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, 8 माइनस 5, इट मीन्स 120 अपॉन माइनस 90 अपॉन 8 माइनस 5, देन 30 upon 3, then 10 units. It means marginal product कितना निकला आपका, 10 units निकला. ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं आपको देती हूँ, आप भी अपने साथ मेरे साथ करिएगा. इसमें आपकी दी हुई है TP at 3 units of labor is 9 units of output and the TP at 2 units the labor is 5 units of output. It means the unit of output आपकी 3 यूनिट पे आपकी आउटपुट है 9 और 2 यूनिट पे आपकी क्वांटिटी है 5. इट मीन्स कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही सेम फॉर्मूला हम लिखेंगे. पहले MP इज इक्वल्स टू चेंज इन टोटल प्रोडक्शन या टोटल आउटपुट. तो चेंज इन आउटपुट में कितना दिखा रहा है, ये है आपका, और चेंज इन क्वांटिटी यानी लेबर्स में कितना चेंज दिखा रहा है, वो ये है आपकी. चेंज इन लेबर लिख लीजिए, यानी कि आपका क्वेश्चन बनेगा 9 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 2. इट मीन्स 4 अपॉन 1. कितना आया, 4 आया, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट आपका कितना आ गया, 4 आ गया. एक और अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी. अगर आपको मान लीजिए जैसे मैंने फॉर्मूला आपका लिखा, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि फॉर्मूला होता है AP इज इक्वल्स टू TP अपॉन L या फिर क्वांटिटी, बोथ आर द सेम. अगर हमें TP निकालना है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो सकता है, AP मल्टीप्लाइड बाई L भी हो सकता है. ओके, इसके साथ एक क्वेश्चन बोर्ड में जिस तरीके का या क्वेश्चन पेपर में आपके किस तरीके का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है. मान लीजिए कि आपकी ये दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन, आपको L दिया हुआ है, L मीन्स क्वांटिटी हो गई, आपको TP दिया हुआ है और आपको एवरेज निकालना है. ठीक है, सबसे पहले आप सारे इनके जितने भी क्वेश्चन हैं इनके सबके फॉर्मूला याद कर लीजिएगा. आपको मान लीजिए 0, 1, 2, 3, छोटा छोटा बताती हूँ मैं आपको. 0 पे टोटल प्रोडक्ट आपका 0 है, 1 पे 15 है, मान लीजिए 35 है और 50. आपको एवरेज निकालना है. आपको इसका निकालना है, एवरेज निकालना है और मार्जिनल निकालना है. ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए तो पहला तो आपका C डैश ही हो गया,
TP अपॉन L 15 अपॉन 1 इट मीन्स 15, 35 अपॉन 2 करेंगे, डिवाइड करेंगे आप इसको, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 17 2 से 34 होता है, 17.5 आ जाएगा। और 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 पॉइंट कुछ आएगा, 6-7 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। और अगर आपको मार्जिनल निकालना होता है, मान लीजिए मार्जिनल भी निकालना होता है इसमें, तो वही आपका सेम फार्मूला, यानी कि आप 0 से तो 0 ही लिखते, 15 का 15 ही लिखते, इसके बाद 35 में से 15 माइनस करते तो ये आ जाता आपका 20, 50 में से 35 माइनस करते तो ये आपका आ जाता कितना, 50 में से 35 माइनस करते तो मेरा आ जाता 15। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आते हैं। एक मैं आपको रिकैप दे रही हूँ चैप्टर का, पूरे का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 5 प्रोडक्शन फंक्शन। इसमें आपके इनपुट्स हैं, जो भी हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करते हैं वो आपके इनपुट होता है, जो प्रोडक्शन बन के आता है वो आउटपुट होता है। प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, Q इज़ द फंक्शन ऑफ x से n तक, टाइम पीरियड के हिसाब से इसको 2 इसमें बांटा जाता है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन हो गया। शॉर्ट रन में आपके फिर आते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं लॉन्ग रन में? फिक्स्ड फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट रन में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। फिक्स्ड फैक्टर्स में, फिक्स्ड फैक्टर्स क्या हो गया, मशीनरी वगैरह हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये सब आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। लॉन्ग रन में क्या होगा, केवल ये चेंज होंगे। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके फिक्स्ड फैक्टर्स में तो उसमें लॉन्ग रन में तो चेंज होंगे ही, शॉर्ट रन में भी चेंज हो जाते हैं। फिर प्रोडक्शन के हिसाब से किस तरीके से डिवाइड किया गया, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल एंड एवरेज। टोटल प्रोडक्ट से एवरेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हो गया आपका। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट का न्यू फॉर्मूला क्या है। तो इस तरीके से ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। इसके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।